Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th. So today I'll explain you about fire insurance. So as in my previous video I explained you about life insurance and what are the importance of if a person do life insurance, fine, and I taught you about the principles of insurance, fine, though we have 7 types of principles of insurance. So in this fire insurance, as we know, fire is a good servant but a bad master. तो हम कह सकते हैं कि fire is very helpful to burn anything, like for cooking, for working in an industry, but if it make a huge structure, then it would become very harmful for anyone. Fine. So the fire insurance policy provides protection against loss or damage by fire. So we can say through the insurance, it is one of the best way, especially for the businessman who can secure his own shop and his own property, so that he can get some compensation at the time of any fire occur in any of the businessman's shop or any storage anywhere. So fire insurance may be defined as a contract by which the insurer undertakes to identify the insured for any loss arising by fire. तो यहाँ पे जो फायर इंश्योरेंस होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिटवीन टू पार्टी, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, सो बाय विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस. अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेसमैन है, उसकी शॉप में अगर आग लग रही है तो वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा. उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उस आग को जितना हो सके उसको वो बुझाए. फाइन. ही नॉट बी सिट फॉर ओनली जस्ट शेक ऑफ की कंपनसेशन मिलेगा, वो उस पैसे से उसको बेनिफिट होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. फाइन. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस एक्ट, फायर इंश्योरेंस business is a business of affecting otherwise then incidentally to some other class of insurance business. So contracts of insurance against loss or incidental to fire or other occurrence customarily included among the risk insured against in fire insurance policy. तो इंसिडेंटली फायर कहीं पर होती है क्योंकि एज यूजुअल इट इज नॉट अ रेगुलर वे ऑफ द फायर, कोई कस्टमाइज नहीं है. तो सडन अगर फायर कहीं अकर होती है, किसी शॉप में होती है या किसी का प्रॉपर्टी में होता है, तो अगर उस बंदे ने उसको इंश्योर किया है देन ही गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. Thus an insurance against fire is one by which the insurer is consideration of a payment in gross at stated intervals agree to identify the insured for a certain time against damage to his property by fire. तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो चेक पक्का करती है कि जो इंश्योरर है उसने जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया था वो फायर से कितना नुकसान हुआ है. अगर वो जानबूझ के फायर आकर कराया है देन इट इज ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेट बाय द फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ओके, so we can say here fire means the production of light and heat by combustion. So there is no fire unless there is an actual initiation. So for example, like a sugar was spoiled by excessive heat caused due to the closing of the ventiles in the chimney. So there was no actual initiations. Fine. तो हम कह सकते हैं कि जो फायर है वो अगर जानबूझ के लगता है कि किसी बंदे ने अपनी शॉप में फॉर गेटिंग द कंपनसेशन लगाई है, तो इट इज टोटली बी वेरी इट मस्ट बी लुक बाय द इंश्योरेंस कंपनी. वो इंश्योरेंस कंपनी उसको लुक करेगी, देखेगी, और अगर उसको फाइंड आउट होता है कि देयर इज नो सच अ प्रॉब्लम, इट इज क्रिएटेड बाय द ओनर इटसेल्फ, then in particular condition
the compensation amount would not be given to the customer. Now it is quite different from the life insurance. So as stated, the following one question is for you. The marine insurance gives the protection against financial loss due to the peril of the sea. तो जैसे कि हम मराइन इंश्योरेंस की बात करें तो मराइन इंश्योरेंस अपने आप में ड्यू टू ऑफ द प्रिल, अगर कोई समुद्र में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शिप आपका डूब जाता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको मराइन इंश्योरेंस मिलता है. बट फायर इंश्योरेंस का ये है कि आप उसको सेव कर सकते थे. ठीक है. सो more points we can say. A fire insurance is a contract between the policy holder and the insurer. ये भी एक contract होता है policy holder और insurer के बीच में. Here the insurance company will pay to the policy holder any loss caused to him. तो कोई भी उसको नुकसान हो रहा है, his particular property when destroyed by a fire accident, तो उसको अगर उसका property fire incident के through कोई destroyed होता है तो fire insurance policy उसको compensate करेगी. So the protection is against any damage that the fire caused. So here the policy holders pays an annual premium. तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो पॉलिसी होल्डर है वो एनुअल प्रीमियम या क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस पे जो प्रीमियम पे करता है, सेम एज इन फायर इंश्योरेंस ऑल्सो पॉलिसी होल्डर्स पे एन एनुअल प्रीमियम. एंड इफ अ फायर ब्रेक्स आउट एंड कॉजेज डैमेज टू द प्रॉपर्टी, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एज अप टू द इंश्योर्ड अमाउंट. तो जितना इंश्योर्ड अमाउंट उसको देना है, कंपनसेट करना है, उतना ही अमाउंट उसको दिया जाएगा जितने का उसको लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है. इफ द डैमेज एक्सीड्स सच अमाउंट द कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्सेस अमाउंट. अगर ज्यादा मात्रा में उसको नुकसान होता है तो उस कंडीशन में कंपनी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. एंड इफ ड्यूरिंग द टर्म सच एज इंसिडेंट डज नॉट अकर, द प्रीमियम अमाउंट विल ऑब्वियसली लैप्स. और फायर इंश्योरेंस का एक और मेन पॉइंट होता है कि until and unless your property would not be caught by the fire or not be damaged by the fire, then this policy would not be run as long as. Fine. तो वहीं पे क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है. So two important characteristics of fire insurance are insurable interest. तो इसमें insurable interest भी है. The policy holder must have an insurable interest in the property being insured, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता था और उसकी वो खुद की प्रॉपर्टी है. The loss of such property must affect the policy holder and their survivor will benefit him. तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा तो उसका खुद का नुकसान है, इसलिए यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही सर्वाइव करता है, क्योंकि बचा के रखता है ताकि उससे उसको बेनिफिट हो. अगर वो जल जाएगा तो उसका नुकसान है. सेकेंड, इसमें जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी इसमें लग रही है वो है गुड फेथ, आउटमोस्ट गुड फेथ. सो द पॉलिसी होल्डर मस्ट डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स टू द इंश्योरेंस इन अ गुड फेथ. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, द कस्टमर मस्ट बी इन्फॉर्म फुल अबाउट द मैटर ऑफ अबाउट द प्रॉपर्टी टू द इंश्योरेंस कंपनी. All details about the property, its construction, the environment, etc. must be provided to the insurer company. तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. अगर वो कोई चीज हाइड करता है और बाद में जब उसका प्रॉपर्टी ड्यू टू अ फायर डैमेज, देन इफ देयर इज एनी क्लू comes in front of the insurance policy, then he'll not pay any type of compensation to the policy holder. So if the company find out a later date that the policy holder withheld information, they can terminate the policy. तो अगर बाद में ये सामने आता है कि जो पॉलिसी होल्डर ने कोई चीजें छुपा के रखी थी, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो उस कंडीशन में जो पॉलिसी है वो उसकी टर्मिनेट कर दी जाती है. ठीक है. तो स्पेशली ये ध्यान दिया जाता है कि जो ये कंपनसेशन आपको दिया जा रहा है थ्रू द फायर इंश्योरेंस, इट इज नॉट फॉर अर्निंग. ये कोई अर्निंग के लिए नहीं है. इट इज फॉर प्रोवाइडिंग अ रेमेडी फॉर्म. ये आपको रेमेडी दिया जाता है, एक कंपनसेशन दिया जाता है फॉर कम आउट योर लॉस. जो बहुत ज्यादा आपका लॉस हुआ है उस लॉस से आपको कुछ % आपको कंपनसेट किया जाता है एज पर डिपेंड अपॉन योर प्रीमियम अमाउंट, कि कितना आप प्रीमियम पे करते थे और कितना अमाउंट में आपको सिक्योर किया जा सकता है. ओके.